Snigdha, is my PPT visible? Yes, ma'am. Okay. Shall we start? अच्छा आप Yes, बताओ ma'am. स्निग्धा, आपका रिसर्च का टॉपिक क्या है, सो दैट वी विल स्टार्ट विद दैट थिंग कि लेटर ऑन वी विल स्टार्ट विद द फैक्टर एनालिसिस। आप लोगों ने कल की क्लास में रिग्रेशन भी पढ़ा। रिग्रेशन Yes, में क्या ma'am. समझ में आया? बेसिकली रिग्रेशन में हम ये देखते हैं कि जो हमारे डिपेंडेंट वैल्यू और इंडिपेंडेंट सॉरी वेरिएबल हम्म। कितना एक दूसरे के साथ रिलेट करती है, उससे हमारे रिजल्ट पे कितना इफेक्ट आता है। ओके, सो दैट मीन्स अगर मैं इसको क्रक्स भाषा में बोलूं, सो इन द रिग्रेशन यू हैव लर्न दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड द independent variable, right? And you will able to measure the whenever there is a changes in the independent variable, you will be able to measure that how much there is a change in the dependent variable, with the how much magnitude they will able to change it. Am I correct? Yes, ma'am. Okay. So from that data, if let us say I don't have any dependent variable, can you able to measure the regression? No, ma'am. No. Why not? क्या Because कोई if इक्वेशन है? all, yes, ma'am, there is an equation, and Hmm. if we have only independent variables, then we cannot acquire any relation between them, I guess. Yes, that is true. So in the regression, this is the must condition that there must be dependent variable also and there must be independent variable also, right? Can an independent variable you will able to measure the different type of, I can say, demographics like gender, occupation, will you able to measure all this in regression? Ki what will be the impact of gender, what will be the impact of occupation or your income level? Yes, uh, ma'am. Yes, ma'am. okay, how? In some situations, these factors are responsible for the result No, of any. no, that I know ki gender will make a differences in some decisions. I agree. But how you will measure that on regression? We need ordinal values in that case. Okay, ordinal or nominal? Ordinal. Ordinal. Ordinal means preferences, but nominal means only for the namesake. In gender, will you say that the female is better than male or males are better than females? Can you say this thing? No, No, ma'am. no. No, no, that means you are not going to use ordinal for the particular variables. For some variables, you can use ordinal. For example, taste preferences. Let us say I have the four flavors of ice cream and I want to ask that which flavor is the most lovable by you and which one is the least. Rank them from 1 to 4. So that is the case of nominal or ordinal. Ordinal. देन इट इज द केस ऑफ ऑर्डिनल। तो अगर मेरा सपोज करो मैंने एक पैरामीटर यही पूछा कि रैंक करो आप अपने फ्लेवर्स को आइसक्रीम की, और दूसरा पैरामीटर मैंने पूछा कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, राइट? और मुझे इन दोनों पैरामीटर्स को कंप्यूट करना है ऑन द रिग्रेशन स्केल, देन हाउ विल वी कंप्यूट दैट? Ma'am, through the equation. No, that is okay. But what would I write for measuring them? क्योंकि मुझे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेटा डालना है फॉर कंप्यूटेशन। सो व्हाट इज द डेटा?
अच्छा, कल रिग्रेशन के अंदर आपने एसपीएसएस में कौन कौन से टाइप के रिग्रेशन पढ़े? प्लीज टेल मी दैट। लीनियर, ओके, सिंपल लीनियर, मल्टीपल लीनियर, राइट, मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन और अच्छा, क्या मैम डमी? descriptive starts with regression and their coefficients and their charts and just that. ओके, ओके, had you learned about the dummy variables? डमी मीन्स ऐसे वेरिएबल्स जिनको मैं क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो टेस्ट करने हैं कि जेंडर का इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, या मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। सो दैट वी कॉल्ड इट द डमी वेरिएबल्स। अब मुझे अगर रिग्रेशन के अंदर डमी कंप्यूट करने होते हैं तो मैं कोडिंग देती हूँ। आप लोगों को याद होगा हमने आपको कोडिंग सिखाई थी कि मैं एक डेटा वेरिएबल व्यू ओपन करती हूँ, वहां पे जेंडर लिखती हूँ, फिर वहां पे वैल्यूज लिखती हूँ, 1 = मेल एंड 2 = फीमेल्स और वाइसा वर्सा, वट एवर इज योर चॉइस, और 0 और 1, वट एवर बी द डिसीजन। तो जब हम ये क्रिएट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं दैट वी आर कंप्यूटिंग द डमी वेरिएबल कंप्यूटेशन ऑन रिग्रेशन। ओके, तो हम इस तरीके से डेटा कंप्यूट करते हैं और फिर उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप में कंप्यूट करते हैं इन केस ऑफ रिग्रेशन। Now let us say the scenario is changed. You all have the variables, you all have the factors, you know the preferences, you know the items, but you don't have independent variable कि ये सारा का सारा इम्पैक्ट पढ़ किस पर्टिकुलर फैक्टर पे रहा है। सो यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तब हम इसको कहते हैं कि मेरे पास डिपेंडेंट को मेजर करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेट अस से आप लोग रिसर्च करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, कि आपके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर आइटम और टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मुझे अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक करना है, तब मैं रिग्रेशन नहीं यूज कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है स्पेसिफिकली। मेरे पास जो डेटा है वो सारा का सारा स्केलिंग में डेटा है। मैं ये चेक करना चाहती हूँ मेरा जो कस्टमर है वो कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करता है, अगर मुझे उसको सेटिस्फाई करना है तो मैं ऐसी रिसर्च करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है अपना, या हो सकता है मेरे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं। सो आई वांट टू फाइंड आउट द रीजन हाउ विल आई इंक्रीज माय सेल्स बाय गिविंग द सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर्स। उस केस के अंदर मैं रिग्रेशन नहीं यूज करती, आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज द फैक्टर एनालिसिस। तो हम सबसे पहले फैक्टर एनालिसिस की ब्रीफिंग करेंगे आज की क्लास में, एंड देन वी विल डू इट विद द कंप्यूटेशन पार्ट। मैं साइमल्टेनियसली दो चीजें चलाऊंगी। क्या दो चीजें चलाऊंगी? एक तरफ मेरा पीपीटी चल रहा होगा और पीपीटी के कोऑर्डिनेशन में ही मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगी दैट हाउ वी विल मूव दिस डेटा इन द फैक्टर एनालिसिस, राइट। आप लोगों के पास ऑलरेडी मैंने दो फाइल्स शेयर कर दिए हैं। प्लीज फैक्टर एनालिसिस 1 और 2 दोनों फाइल ओपन करके रख लीजिए अपने पास, सो दैट साइमल्टेनियसली यू विल आल्सो क्लिक विद मी, राइट। क्लियर है ये पॉइंट? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, डन। So my screen is there. Is my screen is visible with the PPT? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो बेसिकली फैक्टर एनालिसिस हम कब यूज कर रहे हैं, दैट इज समराइज्ड ओवर हेयर। मेरे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करते हैं अलग अलग। एक बंदा कहता है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट इसलिए करता हूँ क्योंकि कन्वीनियंट है, दूसरा कहता है इजी टू यूज है, तीसरा कहता है सिक्योरिटी फीचर बहुत अच्छे हैं, वाइल अदर वन सेज कि इसके अंदर मुझे बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है।
फिफ्थ वन से कि मेरे को ऐसे प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर दिख जाते हैं जो प्रोडक्ट्स मैंने एक्चुअल मार्केट में जाती हूँ तो आई कांट एबल टू एक्सप्लोर। नेक्स्ट वन कहता है टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है, कभी भी देखो, कभी भी सो, कभी भी ऑर्डर करो और टाइमली डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट वन कहता है इनके कॉल सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप इन लोगों के कॉल सेंटर्स पे कॉल करो और दे विल रिवर्ट बैक यू सूनर और लेटर। तो दैट मीन्स मैंने बहुत सारे फैक्टर्स पूछे और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि जब मैं फैक्टर एनालिसिस की बात करती हूँ तो यूजुअली हम रिस्पोंडेंट का नंबर ज्यादा रखते हैं, स्पेशली कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाले केस के अंदर 100 तो मिनिमम नंबर है। इसलिए हम जब आप लोगों को प्रोजेक्ट के लिए भी कहते हैं सो वी विल ऑलवेज कॉल इट फॉर द मिनिमम नंबर। बट जितनी भी एडवांस स्टडीज हुई होती हैं उनमें फैक्टर एनालिसिस में 500, 800, 1000, 4000 का डेटा यूज करते हैं। सो फैक्टर एनालिसिस सबसे पहले ये काम करता है, इतने सारे डेटा को रिड्यूस करता है, समराइज करता है और आपको सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करके देगा। दूसरी चीज, फैक्टर एनालिसिस आपका इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स दिखाता है। लेट्स से मेरा रिलेशनशिप है, मैंने अभी एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया, उसमें मैंने एक रिलेशनशिप बनाया दैट आई हैव वन वेरिएबल कन्वीनियंस एंड आई हैव द अदर वेरिएबल इजी टू यूज। ये दोनों के दोनों तो इंटर रिलेटेड हैं। कितने इंटर रिलेटेड हैं? क्या ये दोनों एक ही पैरामीटर में तो नहीं आ रहे? तो ये सारा काम फैक्टर एनालिसिस अपने आप करता है, अपने आप कंप्यूट करके देता है। मैंने अगर 50 वेरिएबल्स भी बनाए, वो 50 को अगर 5 के अंदर भी डाल सकता है, 50 को 10 में भी डाल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटेशन। तो फैक्टर एनालिसिस डेटा रिडक्शन करता है, समराइजेशन करता है, इंटर रिलेशनशिप दिखाता है सारे वेरिएबल्स के बीच में, और जो हम अंडरलाइंग डायमेंशंस यानी जो मैंने अभी हेडिंग्स बोली, ये अलग अलग फैक्टर के अंदर हेडिंग कर देता है। जैसे कन्वीनियंट, इजी टू यूज, यू कैन एक्सेस एनी टाइम, टाइमली पेमेंट, ये मैंने उसके फीचर्स बता दिए कि मेरे लिए ये कितने अच्छे फीचर्स हैं। सो कैन आई पुट इट द इन अ सिंगल अम्ब्रेला? So when I am going to name a symbol umbrella, let us say I have given the name of the risk related to the online payment. अब risk कैसे कैसे है? Your password will get leaked, your bank account details will get leaked, there might be the security issue, hacking issue, phishing issues। तो मैंने अलग अलग फैक्टर्स को एक बड़ी अम्ब्रेला, एक बड़े नाम के अंदर कंसीडर करा और उस नाम को मैं बोलती हूँ फैक्टर। अगर मेरे 50 में से 5 वेरिएबल कंप्यूट होके आते हैं तो 50 is the variables while 5 are the factors, because in that 5 big factors that 50 variables are covered either in 1, 2, 3 or 5. Up till this point is clear that what I want to say? Yes, ma'am. Anyone has any doubt? डाउट है तो साथ साथ पूछिएगा, क्योंकि इसकी बेसिक थ्योरी यही है, हमको बहुत ज्यादा लंबी लंबी थ्योरीज नहीं पढ़नी इसकी। मैम, हाँ, इसमें कंपलसरी कि इसमें सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए? अभी हम देखेंगे इसके अंदर कि सारे के सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। दीज आर द बेसिक assumption. I am just opening my Jamboard also just to give you a visual view that what we want to say related to this factor analysis. तो मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बताया? मैं अभी डिस्कस कर रही थी आपसे ऑनलाइन की चीजें। सो वी हैव कंसिडर्ड हाउ मेनी फैक्टर्स? कन्वीनियंस, मैम, easy अभी to use. पीपीटी की स्लाइड शो हो रही है। अच्छा, my Jamboard is not visible. No. Just a second. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. So convenience, easy to use, access
एनी टाइम, variety of products, फिर मैंने कहा सिक्योरिटी फीचर्स, then online services or you can say customer services and so on are the factors. तो ये सारे हो गए variables that I am consider while doing the online program or while doing the online product sale, जैसे हमारी apps हो गई. बट जब मैंने वर्ड यूज करा फैक्टर्स, अब वो फैक्टर इज अ बिग अम्ब्रेला. लेट अस से मेरी कंप्यूटेशन के बाद आई गॉट 5 मेजर फैक्टर्स, जिसके अंदर मैंने 50 वेरिएबल्स जो 50 स्टेटमेंट्स थी वो ली. तो कुछ स्टेटमेंट इधर आ गई, कुछ इधर आ गई, कुछ इधर आ गई एंड सो ऑन. तो ये 5 जो हैं ये फैक्टर करते हैं, और जो 50 है वेरिएबल्स, हम इसको वेरिएबल्स कहते हैं, यूजुअली आइटम्स कहते हैं, या स्टेटमेंट्स कहते हैं. कि मैंने अलग अलग 50 स्टेटमेंट 50 लाइनें लिखी और लोगों से पूछा कि भाई अब आपको क्या सही लगता है. कंप्यूट करके अब वो 50 बातें 5 हेड के अंदर आ गई. तो वो जो 5 हेड हैं उनको हम नाम देते हैं फैक्टर. अप टिल दिस इज क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर बताया हमने दैट इट हैज एन इंटरडिपेंडेंस टेक्निक. व्हाई इट हैज एन इंटरडिपेंडेंस टेक्निक, ये मतलब क्या कहना चाहते हैं हमें. सो इंटरडिपेंडेंस टेक्निक मींस एक फैक्टर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवे के साथ, सबके साथ रिलेशनशिप भी रखता है, जिसको हम सीधी भाषा में जानते हैं दैट देयर कैन बी दी कोरिलेशन बिटवीन वन और दी अदर फैक्टर्स. तो ये आपस में जरूरी नहीं है जुदा जुदा हो. तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल कार मैन्युफैक्चरर को इमेज मेजर करनी है अपनी, बाय आस्किंग द रिस्पोंडेंट टू इवेल्युएट द कार्स ऑन द सीरीज ऑफ आइटम्स ऑन अ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल और अ लिकर्ट स्केल. सिमेंटिक स्केल याद है किसी को? आरएम में पढ़ाते हैं हम सिमेंटिक स्केल. So let me brief about this semantic scale. सिमेंटिक स्केल कहता है, लेटर से मैं एक रेस्टोरेंट पे जाती हूँ और रेस्टोरेंट के बाहर मैंने एक सर्वे चालू कर रखा है. या यूजुअली आप देखते भी होंगे जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो कई बार आपको वो बिल के साथ ना एक पेपर दे देते हैं फीडबैक का. आपको रेस्टोरेंट कैसा लगा, आपको रेस्टोरेंट की सर्विस कैसी लगी, प्राइस कैसे लगे, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैसी थी, एम्बियंस कैसा लगा, म्यूजिक पसंद आया कि नहीं आया, हाउ विल यू लाइक माई इंफ्रा. तो ये सारे होते हैं हमारे कि हमको स्टेटमेंट्स बताई जाती हैं, और इन स्टेटमेंट से मैं जज क्या करना चाहती हूँ, क्या पूछना चाहती हूँ मैं, या रेस्टोरेंट वाले क्यों पूछना चाहते हैं. They are satisfied with the statement or not. They are satisfied with this restaurant services or not, and if not, why not. तो वो रीजन आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इतने सारे पूछे, भाई प्राइस ज्यादा लगता है, क्वालिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एंड सो ऑन. अब सिमांटिक स्केल क्या करता है, रेटिंग करता है ऐसे, सेंटर में रखता है 0, +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3, -4. यानी आपको जो डब्बे दिए होंगे वो कुछ इस तरीके से दिए होंगे कि आप पॉजिटिव जा रहे हो तो पॉजिटिव कितना नंबर जा रहे हो, नेगेटिव जा रहे हो तो नेगेटिव कितना नंबर जा रहे हो, कि भाई कितनी हद तक गंदा है या कितनी हद तक अच्छा है. आई कैन टेक इट लाइक दिस. एंड व्हाट डू यू मीन बाय 0 नंबर इन दैट. फिर what represents 0? Neutral. वेरी गुड, न्यूट्रल. आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग बैड अबाउट, बिकॉज हो सकता है कुछ पैरामीटर्स मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते. व्हेन आई विल गो टू रेस्टोरेंट आई जस्ट कंसिडर ऑन द फूड क्वालिटी एंड द वेराइटी ऑफ द फूड एज वेल एज द सर्विसेज. आई एम नॉट कंसिडरेट अबाउट द इंफ्रा.
अच्छा फूड मुझे मिल रहा है, सो आई कैन हैव इट ऑन अ ढाबा ऑल्सो. सो फॉर मी इंफ्रा इज कंसिडर्ड इन द न्यूट्रल. तो सिमांटिक स्केल इस तरीके से बनता है विद द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द जीरो आइटम. और दूसरा वर्ड मैंने लिखा उसके अंदर लिकट स्केल. लिकट स्केल हमारा बनता है पॉइंट स्केलिंग के अंदर 1 2 3 4 5. माई लिकट स्केल कैन बी 5 पॉइंट स्केल. माई लिकट स्केल कैन बी 7 पॉइंट स्केल. माई लिकट स्केल कैन बी 9 पॉइंट स्केल. बट इन मैक्सिमम रिसर्च वी विल यूज द 5 पॉइंट स्केल. और ज्यादातर 5 पॉइंट भी उन्होंने बता रखे हैं. फर्स्ट रिप्रेजेंट्स योर स्ट्रांगली डिसएग्री. Second one disagree. Third one neutral. That means neutral is very important in factor analysis, whether you will use semantic or whether you will use Likert scale. Fourth one is agree and fifth one is strongly agree. आप लोगों में से कुछ लोगों ने फीडबैक फॉर्म भरे होंगे टीचर्स के, अभी जो एड ऑन कोर्स चल रहा है. यस मैम. यस. उसमें है क्या कि रिसोर्स पर्सन कैसा लगा, कंटेंट यस क्वालिटी मैम. कैसा लगा, नॉलेज कैसी थी नॉलेज कितनी टॉपिक है, के बारे में. अपडेट है कि नहीं है, एप्लीकेशन करवा पाया कि नहीं करवा पाया, है ना अलग अलग. यस मैम. This is nothing but it is the factor analysis. Why? Because we are asking about a particular teacher in different statements and on 5 पॉइंट स्केल. आपने देखा होगा देयर आर 5 गोलास, कि आप इसमें से कोई से भी 1 गोला को फिल कर दो, ऐसा ही है ना. यस मैम. राइट. तो क्लियर है अभी यहां तक बात. इज माई पीपीटी विजिबल? नो मैम, अभी No. मेन स्क्रीन. वेट. ओके. So I'm sharing my entire screen. Let me share one more time. See now, is it visible now? यस मैम. गुड. तो हम लोगों ने अभी सिर्फ ये पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे मैं यूज कर सकती हूँ. फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या क्या है. सो इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट एनालिसिस एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस आर देयर. और ज्यादातर आजकल हम लोग फैक्टर एनालिसिस यूज करते हैं क्योंकि हम कंज्यूमर बिहेवियर या बिहेवियरल फाइनेंस हम बोलते हैं कि लोग बहुत डर डर के पैसा इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में. कितना लोग डरे हुए हैं, कितना रिस्क वो उठा सकते हैं, इतने रिस्क पे वो कितना रिटर्न एस्टिमेट करते हैं. तो ये सारे हम फैक्टर एनालिसिस से करते हैं. बेसिकली बिहेवियरल स्टडीज, साइकोलॉजिकल स्टडीज जो हमारी हैं वो हम फैक्टर एनालिसिस से करते हैं. तो कुछ एग्जांपल मैंने लिखे. मार्केट सेगमेंटेशन में आई कैन एबल टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग वेरिएबल्स ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर, कि मिडिल क्लास का ग्रुप का है तो ये ऐसा है, अर्बन एरिया का है तो ये ऐसा काम करेगा, रूरल एरिया का है तो ये ऐसा काम करेगा. आप लोगों ने कोक, पेप्सी, ये जो बड़े बड़े ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, इनके एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे. यस देखते हो मैम. कि नहीं? हाँ देखते हैं, सबको याद आ गए. अच्छा, लेटेस्ट आजकल कौन आ रहा है इनके एड में? सलमान खान. सलमान खान. और वो रणवीर कपूर भी था ना. यस मैम. और मन्नू ने क्या था, एक वो साउथ इंडियन एक्टर भी उसके साथ. हाँ, साउथ इंडियन एक्टर भी था. वेरी गुड. ठीक है ना. ये इंडिया के लिए पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट बनाया गया है या ऑल ओवर वर्ल्ड यही लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं? पर्टिकुलर कंट्री. इंडिया. पर्टिकुलर कंट्री. क्यों क्यों इन लोगों को यहाँ के लिए चुना और बाहर सलमान खान को नहीं जानते लोग? मैम जानते, बट इम्पैक्ट ज्यादा यहाँ पे है, वहाँ पे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स का. यस, दिस इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन. हम मार्केट सेगमेंट करते हैं, हम मार्केट के बेसिस पे किसको लेना है, कौन से एडवर्टाइजमेंट में किसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी ऑडियंस में. दिस इज व्हाट वी कॉल द फैक्टर एनालिसिस. प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर भी मैं फैक्टर एनालिसिस लगाती हूँ कि डिटरमाइन करने के लिए कि अगर एक बंदा ब्रांड कॉन्शियस है
तो वो ब्रांड कॉन्शियस है, तो वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स चेक करता है, तो दैट एट्रीब्यूट्स इफ आई कैन जज एंड आई कैन कीप इट इन माय प्रोडक्ट, आई कैन इन्फ्लुएंस माय कस्टमर। सो एडवर्टाइजिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के अंदर भी हमने करा है, क्योंकि आजकल हम सोचते हैं कि काफी लोगों की थिंकिंग होती है, ओहो ये कम रुपए का है, घटिया क्वालिटी होगी इसकी, so we will inflate the price for that customers. Same package, same thing, everything is same inside the product, even the quality factor is same, but we have inflated the price for that type of customers who thought lower the price, lower the quality. So again pricing studies are going on depending upon the type of the product. यहाँ पर क्लियर है? तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर एनालिसिस के लिए। एनीवन हैज एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। ओके, नेक्स्ट वन वी विल मूव टू दी एजम्पशंस। अब क्योंकि अगर मैं कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल लगाती हूँ और ये भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है, तो इसकी एजम्पशंस होती है। रिग्रेशन करा था आप लोगों ने? रिग्रेशन की एजम्पशंस पढ़ाई होंगी दिविशा मैम ने, आई गेस। यस मैम। क्या पढ़ाई थी? बहुत बड़ा मतलब उन्होंने करा। मैम होमोडेसिटी एंड ये सब वेरी ना। गुड। होमोस्कोडास्टिसिटी, मुश्किल सा वर्ड है, मुझे भी बड़े मुश्किल से आता है। राइट, और क्या पढ़ाई थी? इंटर रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस, लीनियरिटी मस्ट बी देयर, ऐसा कुछ यस पढ़ाया था? मैम। यस तो देखो मैम। ध्यान से, इसके अंदर भी वही सब रिपीट कर रही हूं मैं, क्योंकि हम ये रिग्रेशन का एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। फैक्टर एनालिसिस इज नथिंग बट इट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिग्रेशन, although we are using the scaling part in this, so that's why it is considered sometimes as statistical tool different than regression, but it is actually the extension of regression। इसलिए regression की क्लास के बाद पढ़ाते हैं हम फैक्टर एनालिसिस। तो पहला कहता है कि आपके मल्टीपल वेरिएबल्स होने चाहिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पढ़ाया, कन्वीनियंट टू यूज, सेफ्टी फीचर, टाइमली एक्सेस, एनी टाइम यू कैन एक्सेस, कस्टमर सर्विसेज। मल्टीपल वेरिएबल मैंने करे, दैट शुड बी मेजर्ड एट कॉन्टिन्यूअस स्केल। कॉन्टिन्यूअस स्केल का क्या मतलब? मैम जो हम स्केलिंग करेंगे पॉइंट्स की, वो 1 के बाद सीधा 3 नहीं आना चाहिए, 1 के Very बाद 2 good. आना So चाहिए। there must be the common difference between them. If 1 के बाद 3 is coming, then 3 के बाद there must be the 5, there 5। must be the 7. So continuous scale will be there, 1 3 4 7 ऐसे नहीं चलेगा। There needs to be a linear relationship. So I think we are very much clear with the linear graph, that it is the 45-degree linear graph, but practically it is actually not possible when we will do the computation। तो हम इस assumption को भूल जाते हैं maximum time। Next and the most important part of this factor analysis, there must be a large enough sample size। जितने मेरे फैक्टर्स हैं, जितने मेरे पॉइंट्स बनेंगे फैक्टर्स के, मैंने अभी एक कंप्यूटेशन करी हाइपोथेटिकल, 50 आइटम्स थी, 5 फैक्टर में बनाई, तो कहते हैं आपका जो सैंपल साइज है मस्ट बी 4 to 5 टाइम्स ऑफ योर फैक्टर्स। यानी आपके जो रिस्पोंडेंट हैं वो 4 से 5 गुना ज्यादा होने चाहिए उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को जज करने के लिए। सो फैक्टर एनालिसिस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दी सैंपल साइज। सैंपल अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट कभी अच्छे नहीं आएंगे, रिजल्ट कभी जनरलाइज नहीं हो पाएंगे, और रिजल्ट कभी भी आप कोट नहीं कर पाओगे, बिकॉज दी सैंपल रिजल्ट्स आर नॉट गुड इनफ। डेटा शुड बी सुटेबल फॉर डेटा रिडक्शन। अब इतना डेटा तो हो कि रिड्यूस हो सके। 20 लोगों से पूछा, 5 लोगों को तुमने कह दिया जी ये मिसिंग वैल्यू है, तो 15 से थोड़ी कंप्यूटेशन मैं कर दूंगी और उसको जनरलाइज कर दूंगी लाखों लोगों पे। सो डेटा रिडक्शन के लिए देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डेटा। There should be no significant outliers. I hope you are clear with the word outlier. यस मैम। क्या मतलब होता है? मैम हाँ, हमारे डेटा में जितने भी वैल्यूज हमने इकट्ठे किए हैं, उसमें बिल्कुल कोई हायर एंड लोअर वैल्यू नहीं होना चाहिए, जो नहीं नहीं, बेसिक हायर और डेटा, लोअर तो हो, कोई मतलब बात नहीं। एक्सट्रीम हायर एंड एक्सट्रीम लोअर। वेरी गुड, ऐसे भी कर लो। नहीं तो मैं समझाती हूँ तुम्हें एक एग्जाम्पल से। लेटस से मैंने पूछा स्निग्धा पढ़ाई में अच्छी है 1 to 5 स्केल पे, 5 पॉइंट,
सिग्ना पढ़ाई रोज करती है 5 पॉइंट, स्निग्धा पढ़ाई रोज मिस करती है 5 पॉइंट। इस पे 5 पॉइंट देने चाहिए थे मुझे। वो नहीं। नहीं, क्या देना चाहिए था? रिवर्स देना चाहिए था ना। यस मैम। 1 पॉइंट देना चाहिए था, क्योंकि स्निग्धा को सेकंड क्वेश्चन पे मैंने पूछा स्निग्धा रोज पढ़ाई करती है, 5 पॉइंट। यानी फैक्टर एनालिसिस में हम कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी रखते हैं जिससे हम पता कर पाए कि लोग रिवर्स पढ़ के आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सारे के सारे पे 5 पॉइंट लगा दिया, या सारे के सारे पे 1 पॉइंट लगा दिया, या सारे के सारे पे न्यूट्रल लगा दिया, ऐसा डेटा यूज करोगे कंप्यूटेशन के लिए? नो मैम। उसको आउटलायर कहते हैं। क्लियर? दैट पर्सन इज आउटलायर। कि मैंने तुम्हें बोला, टीचर का फीडबैक दिया, ओहो ये टीचर तो मेरी फेवरेट है, क्वेश्चन कुछ लिखा है 5 पॉइंट, इस टीचर की तो आज मैं वाट लगा दूंगी, देखती हूँ ज्यादा बोलती है ना, ज्यादा बढ़ाती है, सब पे 1 पॉइंट। हम ऐसे डेटा को कंसिडर नहीं करते हैं, इन डेटा को हम बोलते हैं आउटलायर इन केस ऑफ फैक्टर एनालिसिस। Sample must be homogeneous. What do you mean by the concept of homogeneity? Anyone has any idea? मैं एक अच्छी टीचर हूं, आई वॉन्ट टू चेक दिस। मैंने स्निग्धा से पूछा, अमित से पूछा, इप्सा से पूछा, ज्योति से पूछा, ठीक बात पूछी। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों से भी सेम क्वेश्चनेयर भरवा लिया, मैं उनको मैम जानती नहीं, मैं उनको बेसिकली पढ़ाती जो नहीं। डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सेम, मतलब कि अगर हम वेरिएबल्स में ले रहे तो वेरिएबल्स में होने चाहिए। यस, ऐसे ही सेम होता है। क्लास ऑफ ग्रुप्स के होने चाहिए, लोग भी होमोजीनियस होने चाहिए। अगर मैं कोई स्टडी कर रही हूँ मिडिल क्लास लोगों पे, तो सारे मिडिल क्लास ही होने चाहिए, लोअर और अपर नहीं होने चाहिए। अगर मैं स्टडी कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट पैटर्न जानने के लिए, बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ फीमेल्स, तो ऑब्वियसली मुझे उस डेटा में सारे फीमेल्स चाहिए, मेल्स नहीं चाहिए। तो होमोजीनियस होना चाहिए डेटा, डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च। क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट वन, इट एज्यूम्स इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस कन्वीनियंस का था तो कन्वीनियंस के बारे में सोच के बताना, एक्सेसिबिलिटी का था एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोच के बताना, सेफ्टी का था तो सेफ्टी के बारे में सोच के बताना। जरूरी नहीं है जो कन्वीनियंस में क्लिक कराओ वही क्लिक करना है मुझे, सेफ्टी में भी वही क्लिक करना है मुझे, variety of products may be. So the observation must be independent, that is not influenced by any internal or previous statement or by external factors. Is it clear now? Up till now जितना मैंने पढ़ाया अभी, we have not started with the computation, we have just given a briefing कि कहाँ यूज होता है, क्या assumptions है, और फैक्टर एनालिसिस का मेनली पर्पस क्या है, और कौन से स्केल्स यूज करते हैं। ये यस 4 बात मैम। क्लियर है? अरे और भी हैं यस हमारे यहाँ पे मैम। मीटिंग में। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं आ गई मेन पार्ट पे, कंप्यूटेशन पार्ट में, जिसका हमारे बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। वी हैव लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन फैक्टर एनालिसिस, और स्टैटिस्टिक्स के मैंने नाम लिखे आप लोगों के लिए, दैट वी विल एबल टू फाइंड आउट कम्युनैलिटी, ईगन वैल्यू, फैक्टर लोडिंग, फैक्टर मैट्रिक्स, फैक्टर स्कोर। तो मैं सिर्फ आप लोगों को इनका मतलब समझा रही हूँ, और साथ साथ कंप्यूटेशन करूंगी, क्योंकि उसी के साथ आपको इसका मतलब टोटली क्लियर होगा। So I am keeping my PPT over here, and again I am starting with the exercise work simultaneously. Otherwise इनका क्या मतलब है, क्या पर्पस है, कुछ समझ नहीं आएगा। मोटा मोटा एक एक लाइन बता रही हूँ। कम्युनैलिटी मेरे को कंप्यूट करके ये बताती है कि मैंने, मेरे वेरिएबल ने कितना वेरिएंस, मतलब कितना एक्सप्लेन किया मेरे टोटल क्वेश्चन को। मेरा टोटल क्वेश्चन था कस्टमर सेटिस्फेक्शन जाना, और एक मैंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या इस प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा लगता है,
तो जो मेरा आंसर आएगा जो कंप्यूट करके, वो मुझे ये एक्सप्लेन करेगा हाउ मच वेरिएंस, हाउ मच आई विल एबल टू कंट्रीब्यूट to the whole factor. So this is the proportion of variance explained by the common factors. हम इसमें से वो वाली आइटम एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 होता है। तो we will start with the one by one work and then we will move with the statistics, क्योंकि statistics के बाद we have done the steps in factor analysis। तो steps कैसे करने हैं factor analysis में, वो अभी हम practical start कर रहे हैं, और ये उसके बाद हमें final external research paper में compute करने के बाद कौन कौन सी रिपोर्टिंग करनी है that we will look up। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। मैम फैक्टर एनालिसिस के लिए दो चीज इम्पोर्टेंट होने चाहिए कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे जब, तो स्टेटमेंट्स में होने चाहिए प्लस स्केलिंग भी होनी चाहिए उसमें। हाँ बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट को जज कैसे करोगे, उसको कंप्यूटेशन पार्ट पे कैसे लिखोगे, सो दैट मस्ट बी इन दी स्केलिंग। अब मैंने आप लोगों को एक फैक्टर एनालिसिस 1 करके दिया है SPSS टैब। एवरीवन हैज SPSS ओपन कर रखा है, राइट? तो ओपन कर रखा है, तो इसके अंदर देखो, अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ ये रिसर्च क्या है। ये देखो, वेरिएबल में मैंने आप लोगों के लिए लेबलिंग में लिख दिया था कि ये नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैं, सो दिस इज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स इन दी स्टडी, यानी कितने लोगों से मैंने क्वेश्चनेयर भरवाया है। और मैंने 7 आइटम 7 वेरिएबल्स के बेसिस पे क्वेश्चनेयर भरवाया। कितना रिस्क एवर्स करते हो आप, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, इंश्योरेंस कवर है या नहीं है, टैक्स रिबेट के लिए तो नहीं इन्वेस्ट करते आप लोग, मैच्योरिटी टाइम कंसीडर करते हो वाइल इन्वेस्टमेंट कि भाई शॉर्ट मैच्योरिटी टाइम चाहिए, लॉन्ग मैच्योरिटी टाइम चाहिए। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट लोन दे पाए? क्या आपका इजी एक्सेसिबिलिटी है कि कभी मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं इजीली उसको एक्सेस कर लूं और लिक्विडेट करवा दूं? तो ये मैंने 7 बातें पूछी कुछ लोगों से, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट से, कि वो इन्वेस्ट करते हुए क्या क्या चीजें अपने माइंड में कंसीडर करते हैं while taking a decision that he or she wants to invest in a particular scheme or not। क्वेश्चनएयर क्लियर है? यस इज द मैम। क्वेश्चनएयर क्लियर? अब मैंने इसके अंदर वैल्यूज नहीं लिखी हैं, सारी वैल्यूज नन लिखी हैं, ऑल्दो ये गलत है क्योंकि मैंने तो स्केल यूज किया था। सो आई मस्ट हैव टू राइट वैल्यू 1, द लेबल मस्ट बी strongly disagree, and then 2 disagree, then 3 neutral, then 4, बोलते जाओ मेरे साथ साथ, रटा होना चाहिए सबको, and then 5 strongly agree। strongly agree। so these are the values और यही मेरे को सब जगह पे आना है। so I am just putting all the values जो मैं भूल गई, क्योंकि मुझे अभी स्निग्धा ने याद दिलाया कि मेरे को अलग अलग स्टेटमेंट्स होनी चाहिए और उसका स्केल होना चाहिए, तभी ये फैक्टर एनालिसिस पॉसिबल है। क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग कुछ बात का जवाब देते हैं, कुछ लोग कुछ बात का जवाब देते हैं, तो मैंने मिसिंग वैल्यू भी डाल रखी है कि अगर किसी ने कोई बात का जवाब नहीं दिया है, सो राइट डाउन द मिसिंग वैल्यू 999। इट इज योर ऑप्शन वेदर यू वांट टू कीप इट 9, 99, 999। 9 तब रख सकते हैं जब मेरा 1 to 5 का स्केल है तो ऑड नंबर 9, 1 to 11 का स्केल है तो आई कांट राइट 9, आई हैव टू राइट 99। बट फॉर द सेफर साइड मुझे पता है इसका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, सो आई पुट इट 999।
सारे के सारे फैक्टर स्केल होने चाहिए, क्योंकि हमने अभी दो स्केल पढ़े, लिकर्ट स्केल, सेमांटिक स्केल, दोनों स्केल है। और ये वैल्यू हमारा डेटा वेरिएबल व्यू कंप्लीट हो गया है। अप टिल दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, सो वी विल मूव टू आवर डेटा। और मैंने देखो रिस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर कितना तक दिया है, रिस्पोंडेंट नंबर 80 तक दिया है। यानी मैंने जो ये क्वेश्चनेयर है 80 लोगों से भरवाया टू नो अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट पैटर्न, दैट हाउ विल दे टेक द डिसीजन फाइनली वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट बाय कंसिडरिंग ऑल 7 वेरिएबल्स। देखो यहाँ पर 999 रिफ्लेक्ट हो रहा है 18th रिस्पोंडेंट में। यस Can you मैम। see? So that means this is the missing value. ये देखो सारी वैल्यूज में मैंने नंबर भर दिए थे तो नंबर आ गए, बट 999 रिमेन्स द सेम बिकॉज इट इज अ मिसिंग वैल्यू। तो इसकी कोई कोडिंग नहीं आएगी, इट इज अ डेड वैल्यू। अब कैसे हमें फैक्टर एनालिसिस स्टार्ट करना है, सो आई विल टेल यू दी स्टेप्स। एनालाइज, then move to dimension reduction and factor. Is it clear? Analyze, dimension reduction and factor. यस मैम। पहुंच गए यहां तक? आगे बढ़ूं? यस मैम, बस एक सेकेंड। हाँ, टेक योर टाइम। अब हम साथ साथ करेंगे कंप्यूटेशन। आई एम नॉट इन अ रश। तो मैंने क्या किया था पहले, एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन एंड फैक्टर, एंड आई क्लिक दिस फैक्टर। पहुंच गए? डन मैम। डन। देखो फैक्टर क्लिक करते ही जो आपका ओपन हो गया विंडो टैब, द हेडिंग इज फैक्टर एनालिसिस, राइट? अब now in factor analysis, how many variables we have taken? We have taken all 7 8। variables. 8 is the number of respondent, ध्यान ओके मैम। रखिएगा, ओके right? मैम। तो 7 variables हैं, I am selecting all 7 and putting in variables because these are my variables right now. कितने फैक्टर बन के आएंगे वो मुझे अभी तक नहीं पता, बट मैंने 7 बातें पूछी थी तो वो मेरे 7 वेरिएबल हो गए। सिंपल। पहुंच गए यहां तक? यस मैम। एक ही पहुंचा है, सारे पहुंच गए? हेलो? मैम पहुंच गए यहाँ तक। पहुंच गए। सो वी विल क्लिक ऑल द टैब्स बट वन बाय वन। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव को क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्टिव के अंदर मैं क्लिक करती हूँ केएमओ एंड बार्टले टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी। आई एम रिपीटिंग, you have to click KMO and Bartlett test of sparsity। ये दो अलग अलग रिजल्ट हैं। केएमओ आपको चेक करके बताता है आपका सैंपल एडिक्वेट है या नहीं है। सो केएमओ विल चेक दी सैम्पलिंग एडिक्वेसी। फैक्टर एनालिसिस की पहली एजम्पशन है that the sample must be adequate. So this test will tell me about the sampling adequacy। अगर आप यहां फेल हो जाते हो तो फैक्टर एनालिसिस आगे नहीं करोगे। नेक्स्ट लिखा मैंने बार्टले टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी। हमने पहली एजम्पशन लिखी थी फैक्टर एनालिसिस में, देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वेरिएबल्स, ऐसा कुछ लिखा था। यस मैम। अब ये इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल है या नहीं है? सो दिस थिंग, दैट रिलेशनशिप जिसको हम सिंपल भाषा में बोले तो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स is checked by this Bartlett test। KMO will check your sampling adequacy. Bartlett will check the interdependence of variables। Up till this is clear? यस मैम। पक्का?
साथ साथ पॉइंट नोट करते रहना, क्योंकि जब रिसर्च पेपर लिखोगे फैक्टर एनालिसिस से रिलेटेड, ये बात रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखोगे, केएमई टेस्ट इज यूज फॉर व्हाट, बार्टले टेस्ट इज यूज फॉर व्हाट, और जब मैं रिसर्च पेपर के नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगी डेटा एनालिसिस में, उसमें केएमओ और बार्टले टेस्ट के रिजल्ट्स भी शो करूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, राइट? तो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन, मतलब ब्रीफ लिखना देंगे। होता है ना, क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज कर रहे हैं। केएमओ एक बंदे ने बनाया है, केएमओ, ये 3 ऑथर्स हैं, कैस्पर्सके, मेंडलियन और ओलिवर करके इनकी फुल फॉर्म है। तो केएमओ टेस्ट उन बंदों ने बनाया है। बार्टले टेस्ट ऑफ स्पेरिटी बार्टले ने बनाया है। ये अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं फैक्टर एनालिसिस के अंदर, राइट? तो हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखना होता है ना, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। जब आप लिखते हो हाउ यू कंप्यूट द डेटा, जब हम पहले छोटा वाला रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते थे तो आप क्या कहते थे, आवर रिजल्ट्स आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द पाई चार्ट्स एंड ग्राफ्स। सो नाउ वी विल राइट डाउन आवर रिजल्ट्स आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस टेस्ट केएमओ एंड बार्टले। केएमओ will check the sampling adequacy while Bartley will check the interdependence of all the variables. यहां तक क्लियर? मैम ये लाइन रिपीट करना जो भी आपने लास्ट में बोली। अच्छा, मैंने बोला केएमओ टेस्ट ये आपको नेट पे मिल जाएगा, जैसे ही केएमओ एंड बार्टले डालेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आई एम देयर आफ्टर दिस एड ऑन क्लास ऑल्सो। केएमओ विल चेक द सैम्पलिंग एडिक्वेसी, Bartlett test of sphericity will check the interdependence of relation among the variables. Shall we move? यस Yes, ma'am. Okay, so we will put continue। और लॉजिकली वैसे मुझे ये क्लिक करने के बाद ओके क्लिक करके रिजल्ट देख लेना चाहिए, बट क्योंकि चलो हम रिजल्ट देख लेते हैं। इज माय स्क्रीन विजिबल, आउटपुट रिजल्ट विजिबल है? Yes, ma'am. ओके ओके, तो देखो पहला डब्बा मुझे यूज करना है। देखो केएमओ का नाम आ गया, केसर मेयर ऑल्किन, मेजर ऑफ सैम्पलिंग एडिक्वेसी। ये मैंने नहीं बताया, ये एसपीएसएस वालों ने आउटपुट के अंदर फिट कर रखा है आपके लिए। भूल जाओ तो ये मतलब है केएमओ का, क्या टेस्ट का नाम है और क्या मेजर करता है। इसका मेरा रिजल्ट आया है 0.591। नाउ हाउ विल आई जज? तो राइट डाउन द रिजल्ट, आउटपुट में आपको लिखना है if KMO result is greater than 0.5, I am repeating, if KMO result is greater than 0.5, then sampling adequacy is there. The sample is sufficient enough to compute factor analysis. तो मेरा रिजल्ट 0.591 है, विच इज ग्रेटर देन 0.5, राइट? अब बार्टले टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी चेक करना है, तो मुझे इसके अंदर काय डिग्री ऑफ फ्रीडम ये नहीं पढ़ना। आई जस्ट वांट टू चेक दिस वैल्यू सिग्निफिकेंस, वेदर द वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और नॉट। कब होता है सिग्निफिकेंट रिजल्ट? व्हेन द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट इज I'm लेस 0 to देन, 1. नो, तो प्लीज राइट डाउन। 0.05. Very good. So when the value of significant is less than 0.05, then it is significant, otherwise not. क्या मेरा रिजल्ट सिग्निफिकेंट है? 0.00. Yes, ma'am. 0.0050, ma'am. So yes, I can do factor analysis now। और मेरा केएमओ एंड बार्टले टेस्ट का काम खत्म हो गया। मुझे केएमओ और बार्टले टेस्ट से सिर्फ ये दो चीजें चाहिए थी, सैंपल सही हो, मोर देन 0.5 हो, और बार्टले का जो रिजल्ट हो सिग्निफिकेंट वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0.05। तो मेरा ये पैरामीटर बढ़िया हो गया है। क्लियर? तो अब मैं वापस जाऊंगी अपनी विंडो पे, क्योंकि मैंने पहला ही टैब करा था अभी। सो आई विल डू द एनालाइज
डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट I had covered. Now we will use the next step, extraction. In extraction method, we will use the principal component. इसको क्लिक करोगे बड़े सारे मेथड हैं, हमको अभी स्टार्टिंग लेवल पे एक ही मेथड पता होना चाहिए, प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PCA. सो एक्सट्रैक्ट करने के लिए कि कितने फैक्टर्स मैं निकाल लूं उससे, ये एक्सट्रैक्ट करेगा, मेथड यूज करेगा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसका नाम होता है शॉर्ट फॉर्म में PCA. इसमें कुछ चीजें देखो ऑटोमेटिकली क्लिक्ड है, आपके में क्लिक है. एनालाइज के अंदर कोरिलेशन मैट्रिक्स दे दे, डिस्प्ले के अंदर अनरोटेटेड फैक्टर सॉल्यूशन दे दे. क्लिक है क्या आपके में? मैम मेरे में डिस्प्ले का नहीं था, बट एनालाइज वाला था. तो डिस्प्ले में क्लिक कर दो अनरोटेटेड फैक्टर सॉल्यूशन. एक्सट्रैक्ट में देखो बाय डिफॉल्ट गिवन है बेस्ड ऑन ईगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन 1. आइगन वैल्यू होता है कि टोटल वेरिएंस मेरा एक फैक्टर कितना एक्सप्लेन कर रहा है, एटलीस्ट एक नंबर तो एक्सप्लेन कर रहा हो. तो आइगन वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 होती है, हम सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को लेते हैं फाइनल डेटा में कि ये वाले फैक्टर्स मेरे ले लो और ये वाले फैक्टर्स छोड़ दो. सो बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 1 बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे. एंड क्लिक कॉन्टिन्यू. कर दूं कॉन्टिन्यू? यहां तक पहुंच गए? मैम ये क्या है मैक्सिमम मैक्सिमम इटरेशंस ऑफ? आइट्रेशन प्रोबेबिलिटी है कितनी बार कंप्यूटेशन करे. तो मैक्सिमम आइट्रेशन है कि जोड़ तोड़ करे, हम जो बोलते हैं हिंदी भाषा में, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. अभी तो हमने डेटा छोटा सा लिया है, 7 वेरिएबल लिए हैं और 80 रिस्पोंडेंट लिए हैं, जबकि ये वेरिएबल 7 नहीं होते, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसमें 70 80 90 वेरिएबल होते हैं. और रिस्पोंडेंट का तो मैंने आपको पहले ही बताया है, 500 1000 2000 3000 होते हैं. तो वो कहते हैं आइट्रेशंस मतलब कितनी बारी प्रोबेबिलिटी लगा के फिर मुझे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट देना. तो ये बैकहैंड कंप्यूटेशन होती है, मैक्सिमम आइट्रेशन फॉर कन्वर्जेंस. मैम राइट? हाँ जी. मेरे रिसर्च पेपर में ऐसे जो स्टेटमेंट्स वाला जो मैंने किया था वो 22 स्टेटमेंट्स है और हाँ टोटल नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स 400 है. हाँ, बहुत बढ़िया. तो तो मतलब ये चेंज नहीं 22, करना ना? नहीं 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 चेंज करना. ठीक है. कॉन्टिन्यू कर दिया ना ये टैब यहां तक, कॉन्टिन्यू तक. यस मैम. नेक्स्ट टैब ओपन कर लो, रोटेशन. रोटेशन के अंदर अब इसमें मेथड लिखा है नन. हम हमेशा मेथड यूज करेंगे वेरी मैक्स. जैसे ही आप वेरी मैक्स को क्लिक करोगे, अपने आप डिस्प्ले में रोटेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा, और मैक्सिमम आइट्रेशन वहां भी 25 था, यहां भी 25 है, अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा. तो मुझे कुछ नहीं करना इसके अंदर, मुझे सिर्फ रोटेशन के अंदर वेरी मैक्स यूज करना है. देयर आर 4 मेथड्स, 5 मेथड्स इन एक्चुअल रोटेशन, बट हमें वेरी मैक्स पे क्लिक करना है. द बेस्ट मेथड ऑफ SPSS और फैक्टर एनालिसिस. आगे बढ़े, यहां यस तक पहुंच मैम. गए. यस मैम. कंटिन्यू. नेक्स्ट. ये कहाँ गए भाई, ये सिंटेक्स खुल गया, रुकिए. नो आई डोंट वांट सिंटेक्स. एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर. सो रोटेशन तक आई हैव क्लिक. नेक्स्ट वन, स्कोर्स. अब वो कह रहे हैं, हमने एक टर्म, अगर आपने ध्यान दिया PPT में मैंने 5 टर्म लिखी थी, कॉम्युनैलिटी, ईगन वैल्यू, फैक्टर लोडिंग, फैक्टर स्कोर. तो फैक्टर स्कोर मुझे निकालना है, तो मैंने क्लिक करना है सेव एज वेरिएबल. कैसे निकालना है फैक्टर स्कोर? रिग्रेशन मेथड से, और डिस्प्ले कर दो मेरा फैक्टर स्कोर.
फैक्टर स्कोर का मतलब है जो ये आपने स्केल्स बनाए हैं, इनके अंदर अगर मेरे लेटर से 2 फैक्टर बन के आते हैं फाइनली, तो उन 2 फैक्टर को मेरे को अगर रिग्रेशन पे रन करना है तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो ये वैल्यूज मुझे कंप्यूट नहीं करनी होती, ये मुझे अपने आप दे देगा फैक्टर स्कोर में कंप्यूट करके, सारी कंप्यूटेशन करके। ये क्लिक कर लिया है। Yes, ma'am. So do continue. Last one, options. ऑप्शंस के अंदर आपको कोफिशिएंट डिस्प्ले फॉर्मेट, आपके जो कोफिशिएंट आए वो डिस्प्ले में कैसे हों ये ऑप्शनल होता है, वेदर यू वांट टू यूज इट और नॉट। अभी आई एम यूजिंग इट। सॉर्टेड बाय साइज, सप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये अब आपको डिसाइड करना होता है डेटा देख के कि स्मॉल वैल्यू आपको कौन सी लेनी है कोफिशिएंट की। बाय डिफॉल्ट इसमें सबसे छोटी वैल्यू दी हुई है 0.10। लेट अस से आई एम टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू 0.40, कि इससे छोटी वैल्यू हो तो मुझे डिस्प्ले में मत दिखाना, इससे सिर्फ बड़ी वैल्यूज दिखाना। ये कहने का मतलब है इस विंडो का। कंटिन्यू। मैम हाँ जी, दोबारा एक बार ऑप्शन। ऑप्शन क्लिक करा। मैम इसमें हमने 0.40 ही क्यों दिया? नहीं, ये अपनी मर्जी है, ये डेटा देख के करते हैं। चलो अभी हम करते नहीं क्लिक, ठीक है। मैंने अनचेक कर दिया, फिर डेटा दिखाऊंगी, देन वी विल रन, ठीक है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना? हाँ, इसका स्टैंडर्ड नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे अभी हमारा रिजल्ट आएगा, देन आई विल टेल यू। ओके मैम। ओके, तो अभी इसको अनचेक कर दो वापस एंड डू कंटिन्यू। कर लिया? यस मैम। चलिए, क्लिक ओके। मैंने बस ओके क्लिक किया और बहुत सारी कंप्यूटेशन मेरी विंडोज पे डिस्प्ले हो गई। पहली हम विंडो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज केएमओ एंड बार्टले टेस्ट, जिसके अंदर मुझे 0.591 डिस्क्लोज करना है और 0.000 डिस्क्लोज करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे टेबल्स आए हुए हैं, हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और फैक्टर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे रिजल्ट्स नहीं चाहिए हैं। कौन कौन से रिजल्ट चाहिए हैं वो वाले पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कम्युनैलिटी का मतलब मैंने क्या समझाया था, मेरा एक वेरिएबल कितना एक्सप्लेन कर रहा है उस पूरे फैक्टर को, दैट इज कम्युनैलिटी। तो मेरा रिस्क अवेयरनेस कितना एक्सप्लेन कर रहा है उस पूरे फैक्टर को, 59.8%। Is it a high value or a low value? हाय। सबसे ज्यादा कौन एक्सप्लेन कर रहा है, विच फैक्टर? फाइनेंशियल स्कोर ऑन क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल वेरी गुड, इंस्टीट्यूशन। बाय हाउ मच परसेंटेज? 72.5। और हमने कम्युनैलिटी में कौन सा मेथड यूज किया निकालने के लिए? Had we clicked any item to find out the communality? सो इसका आंसर है यस। हमने एक्सट्रैक्शन टैब के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को यूज किया था, पीसीए। यस मैम। तो उसी से ये कम्युनैलिटी की वैल्यू निकली है। यानी अगर आप मेथड चेंज कर दोगे, उसमें आ रहा था ना ड्रॉप डाउन मेन्यू में कई सारे मेथड आ रहे थे, सो इफ यू विल चेंज द मेथड, योर कम्युनैलिटी वैल्यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू द मेथड, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन फॉर्मूला, राइट। तो कम्युनैलिटी निकालने के बहुत सारे मेथड है, बट बेस्ट मेथड इज पीसीए। ये क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट बात आ गई थर्ड टेबल। थर्ड टेबल के अंदर ध्यान से पढ़ो, हेडिंग लिखिए टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन। कितना वेरिएंस निकल के आ रहा है जो मैंने पैरामीटर पूछे उनसे, और मुझे इसके अंदर पढ़नी है सिर्फ ईगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। मैंने एक जगह पे क्लिक करा था, मैं सिर्फ उन्हीं आइगन वैल्यूज को लूंगी जिनका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। लिया था? लिया यस था? मैम।
तो देखो ये आपके 7 पैरामीटर थे, ये आपकी 7 आइगन वैल्यूज हैं। ये जो लिखा है ना 2.054, 1.551, 0.970 एंड सो ऑन, दीज आर योर आइगन वैल्यूज। मगर मैंने एक क्लिक करी हुई थी ऑप्शन, मेरे फाइनल डेटा में सिर्फ वो ही आइगन वैल्यूज हो। कौन सी वाली? जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। 1 हो। तो मेरे स्टैटिस्टिकल टूल ने क्या किया, आपको सारी आइगन वैल्यूज भी बताई और फाइनल रिजल्ट बताया कि आपकी दो वैल्यूज हैं आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 1। अगर आप रोटेशन मैट्रिक्स यूज करते हो तो आपकी दो वैल्यूज हैं, यानी आपके दो फैक्टर बन के आ रहे हैं बड़े। 7 वेरिएबल्स को मैं कितने फैक्टर में कन्वर्ट कर रही हूँ? 2 में। 2 में। कैसे पता लगा? आइगन वैल्यू से। आइगन वैल्यूज से जो मेरे लास्ट में बनी आई, इस वाले से सारी वैल्यूज पता लग गई। फाइनली दो फैक्टर बन के आए, ये मुझे पता लगा इस वाले से। अगर यहाँ पे तीसरे वैल्यू में भी लिखा होता है 1.06 एंड सम वैल्यूज, तो यानी मेरे कितने फैक्टर बन के आते? 3। वेरी गुड, इंटरप्रिटेशन क्लियर है। अब यस आइगन मैम। वैल्यूज मुझे ये भी बताती है कि ये दो फैक्टर मेरे पैटर्न को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था, प्लीज एक्सप्लेन हाउ मच दीज वेरिएबल्स एक्सप्लेन माय डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न। तो इन्होंने मुझे आंसर दे दिया 51.5%। आपने जो वेरिएबल्स लिए हैं वो एक्सप्लेन करते हैं आपके डिसीजन को, इन्वेस्टमेंट पैटर्न को। मेरी रिसर्च तो यही थी ना कि मेरे को डिसीजन लेना है कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न डिसाइड करते हुए मेरे ये जो वेरिएबल्स हैं ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 51.5%। इज दिस वैल्यू क्लियर? यस मैम। तो यानी मैं आइगन वैल्यूज को, कौन सी वाली, ये वाली आइगन वैल्यूज को फाइनल रिजल्ट में दिखाती हूं, राइट। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स आई कंपोनेंट मैट्रिक्स। कंपोनेंट मैट्रिक्स ने आपको बताए कितने कंपोनेंट्स बनाए, कितने कंपोनेंट बनाए, सिंपल भाषा में कितने फैक्टर बनाए। वो तो मुझे इससे पहले वाली टेबल में ही पता लग गया था। कितने फैक्टर बनाए? 2 2। फैक्टर बनाए। अब उन 2 फैक्टर में क्या क्या वैल्यूज आई एक्सट्रैक्ट करके, वो मुझे बताया इस कंपोनेंट मैट्रिक्स ने। देखो क्या लिखा है, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2। व्हाई दे आर नॉट यूजिंग वर्ड फैक्टर? मैम कंपोनेंट एंड फैक्टर का मतलब तो एक ही हुआ ना। एक ही हुआ, लेकिन कंपोनेंट में उसने बताया कि 1 में सारों की वैल्यूज कितनी थी और 2 में सारों की वैल्यूज कितनी थी। उसने हर एक कंपोनेंट बताया। उसने ये नहीं बताया आपको अभी तक कि 1 फैक्टर के अंदर कितनी आइटम्स लो और 2 फैक्टर के अंदर कितनी आइटम्स लो। सो दैट इज व्हाई वी हैव नॉट यूज द वर्ड फैक्टर, वी हैव यूज द वर्ड कंपोनेंट। तो यहां से मुझे ये पता लगता है हाउ मच ईच वेरिएबल इज कंट्रीब्यूटिंग इन ईच फैक्टर। और आई कैन से दिस थिंग, please write down this word. Component matrix will tell you about factor loading. Factor loading is the correlation. I am repeating, factor loading is the correlation between a particular variable and its factor. यानी -0.716 को रिलेशन बताता है बिटवीन रिस्क अवेयरनेस एंड फैक्टर 1, जबकि 0.753 का को रिलेशन बताता है बिटवीन रिस्क अवेयरनेस एंड फैक्टर 2। सो विच वन हैज द स्ट्रॉन्ग को रिलेशन विद रिस्क अवेयरनेस? फैक्टर 1, फैक्टर 2? मैम फैक्टर 2। फैक्टर 2। और पॉजिटिव किसका है को रिलेशन? मैम 2 का पॉजिटिव है। और नेगेटिव किसका है? 1। तो component matrix will tell you about factor loadings. Factor loadings is nothing but it is the correlation between variable and factor. Is it clear?
यस मैम। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ एक ही बच्चे की क्लास ले रही हूँ। नेक्स्ट आइटम आती है आपकी रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ऑप्शन क्लिक करवाई थी वेरी मैक्स, याद है? यस मेथड ऑफ मैम। रोटेशन में वेरी मैक्स। अब वेरी मैक्स कहता है मैं आपको ऐसी वैल्यूज कंप्यूट करके दूंगा जिसका कोरिलेशन आपके वैल्यूज में नियरर टू जीरो और बेस्ट मेथड होगा बिटवीन -1 to 1। यानी कंपोनेंट मैट्रिक्स जो है वो जनरल कोरिलेशन बताती है, वेरी मैक्स जो है रोटेटेड कंपोनेंट जो है वो सप्रेस करके बताता है। अब इस सप्रेशन का मैं कहाँ यूज करूंगी वो बताऊंगी। तो हम रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कौन सी आइटम किस फैक्टर में आनी चाहिए, और रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स के बाद मेरा कंपोनेंट स्कोर बन जाता है, जिसके बेसिस पे मैं कहती हूँ फैक्टर स्कोर की कंप्यूटेशन करूंगी। यानी मैंने जो फैक्टर्स बनाए उसके अंदर कितना वेटेज, कितना बीटा इसका है और कितना वैल्यूज का है, इसके बेसिस पे मैं फैक्टर स्कोर की कंप्यूटेशन करूंगी। आई एम शेयरिंग माय पीपीटी फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू कि क्या चेंज आएगा कहां पर। तो देखो हमने कम्युनैलिटी निकाल ली, यस कम्युनैलिटी की मैम। टेबल निकाली, आइगन वैल्यू निकाली जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है फाइनली ग्रेटर देन 1 वाला, यस हमने मैम। फैक्टर लोडिंग की टेबल निकाली विच इज अ सिंपल कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड दी फैक्टर्स, और हमने फैक्टर मैट्रिक्स बनाई। फैक्टर मैट्रिक्स कहती है कितनी लोडिंग कौन से वेरिएबल से एक्सट्रैक्ट हुई, विच इज नथिंग बट इट इज द रोटेशन मैट्रिक्स, जिसके ऊपर लिखा है ना रोटेशन कंपोनेंट मैट्रिक्स। सो दिस इज द फैक्टर मैट्रिक्स। उसके मैम बाद हाँ जी, एक कंफ्यूजन है। हाँ बोलो बोलो। फैक्टर लोडिंग्स में भी हमें वो बता रहा था कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। नहीं, तो फैक्टर लोडिंग के अंदर सिर्फ कोरिलेशन वैल्यू बताता है, यानी जो मैं कोरिलेशन के फॉर्मूले जानती हूँ ना स्टैटिस्टिक्स में, कि ठीक है मैम। कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज नोन बाय फैक्टर लोडिंग इन दिस। और एंड फैक्टर फैक्टर मैट, मैट्रिक्स हाँ कंट्रीब्यूशन पता चलता है हर हाँ कंपोनेंट। बिल्कुल, और वो भी एक्सट्रैक्ट करने के बाद, यानी फाइनल कंप्यूटेशन करने के बाद। सो दैट इज व्हाई दिस फैक्टर मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फैक्टर स्कोर मुझे बताता है कि मैंने कंप्यूटेशन करी, देखो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए फॉर्मूला भी लिखा, बीटा 1 वेटेज ऑफ 1। ध्यान से देखो मैंने कंप्यूटेशन करी है इसके अंदर, मैंने मतलब इस सॉफ्टवेयर ने, what is beta 1, it is 0.063 मैम of एक x1। सेकेंड, एक सेकेंड नोट कर रही हूँ। हम्म, आपको ओरली कंप्यूटेशन इसलिए बता रही हूँ कि आप उसको लाइन अप कर पाओ, अदरवाइज ये सब कंप्यूटेशन मुझे सॉफ्टवेयर करके देगा, मुझे कुछ नहीं करना। बोलूं? यस मैम। ये देखो, तो ये बीटाज हैं, ये अपने आप कंप्यूट करके दिए। और वो कहते हैं अगर आपको बीटास पता है तो आप फैक्टर स्कोर मैनुअली कंप्यूट कर सकते हो, और मैनुअल कंप्यूटेशन का आपको फॉर्मूला बताया बीटा 1 into x1 प्लस बीटा 12 into x2 प्लस दिस जितने भी बीटास निकलेंगे इनटू देयर एक्स वेरिएबल, दैट विल बी द आंसर ऑफ फैक्टर 1 फैक्टर स्कोर। तो ये जो इतनी लंबी कंप्यूटेशन है ये मेरे को करके दी है, मुझे फैक्टर 1 फैक्टर 2 बना के दिया एसपीएसएस ने बाय जस्ट क्लिकिंग, ये मुझे कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ी। अप टिल दिस इज क्लियर? यस यस मैम। मैम ओके, एक बार ना फैक्टर स्कोर समझा दो। अभी समझाऊंगी, अभी मैंने समझाया नहीं है क्योंकि अभी मैंने आपको सप्रेस वाला भी नहीं बताया और रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स भी नहीं बताया, 3 बात रह गई अभी बतानी, राइट?
फिर मैंने स्टेप्स करे, तो हमने ये स्टेप्स ऑलरेडी कर लिए, कोरिलेशन मैट्रिक्स, फैक्टर एक्सट्रैक्शन, फैक्टर रोटेशन, फाइनल डिसीजन। और उसके बाद मैंने आपके लिए जनरल में लिखा है, ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए या फोटो क्लिक कर लीजिए कि जब आप रिसर्च पेपर लिखेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट लिखेंगे, आपको कौन कौन सी बातें रिपोर्ट करनी है। तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स लिखना है कि कितने रिस्पोंडेंट थे, उनका मीन मीडियन क्या था। आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स को कंप्यूट करना है, वो सिंपल कोरिलेशन वाले से आ जाएगा टैब पे, एनालाइज कोरिलेशन और बाइवेरिएट से। फिर आपको मेथड यूज करना है, दैट आई हैव यूज्ड पीसीए। कम्युनैलिटी निकालना है, फैक्टर एक्सट्रैक्शन निकालना है और फैक्टर रोटेशन निकालना है, और क्राइटेरिया एम्प्लॉयड फॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड मीनिंगफुल फैक्टर लोडिंग करना है। सो दीज आर द स्टेप्स दैट आई हैव रिटन ऑन दिस पीपीटी, बट वो स्टेप हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं। सो नाउ वी विल मूव टू मैम, आवर डिसीजन। हाँ जी। जो लास्ट पॉइंट था वो रिपोर्ट में, वो तो वही चीज है ना जो फैक्टर्स हमने अभी आपने मेरे से लोडिंग्स क्वेश्चन की पूछा बात। था ना कि मैम .4 क्यों लिखा, यस मैम, वो क्वेश्चन है वो। ठीक है। तो वो अब हम आंसर देंगे, राइट। अब ओके अपनी मैम। तुमने जो ये टैब खोली, जब तुमने क्लिक क्लिक किया, देखो तुम्हारे पास भी ये दो बनी आ गई होंगी ऑटोमेटिकली। अपने वेरिएबल व्यू में देखो, ये लिखा था हमने कुछ, हमने तो यहाँ तक लिखा था ना x7 तक। यस मैम। तो ये बना हुआ आ जाता है, फैक्टर 1 ये वैल्यूज, फैक्टर 2 ये वैल्यूज, ये कंप्यूट करी, तो ये है फैक्टर स्कोर की कंप्यूटेशन। ये रिग्रेशन में काम आएगी, क्योंकि मुझे रिग्रेशन के अंदर वेरिएबल्स डालने होते हैं, कितने वेरिएबल्स हैं रिग्रेशन के अंदर। मैं ये 1 to 7 नहीं डालूंगी, फैक्टर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फैक्टर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन सम डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कंप्यूटेशन मुझे मैनुअली नहीं करनी, ये कंप्यूटेशन मुझे ये सॉफ्टवेयर करके देता है। दिस इज योर फैक्टर स्कोर। ये ओके पॉइंट क्लियर मैम। है कि यस फैक्टर मैम। स्कोर कहाँ यूज हुआ, यहाँ यूज हुआ। हमें स्टैंडर्ड फैक्टर्स की वैल्यूज कंप्यूट करके देता है फैक्टर स्कोर। अब नेक्स्ट बात के बारे में बताऊंगी, हमने कंप्यूट करके रखी हुई हैं वैल्यूज। अच्छा हाँ, इसके बाद एक और बात है, एक और टेबल है, ये टेबल दिख रही है, कंपोनेंट यस स्कोर मैम। कोवेन। ये टेबल एश्योर करती है कि आपने जो रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स, यानी ये वाली रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स जो बनाई है वो बिल्कुल ठीक बनाई है, क्योंकि एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर के साथ, एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ये मुझे कैसे पता कोई भी रिलेशन नहीं है फैक्टर 1 का फैक्टर 2 के साथ या फैक्टर 2 का फैक्टर 1 के साथ। दिस मैट्रिक्स विल टेल मी दिस रिलेशन। ध्यान से देखो, 1 से 1 का रिलेशन 1, कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 का रिलेशन कितना है, 0। दिस प्रूव्स कि फैक्टर 1 का कोई भी रिलेशन नहीं रहा। अब फैक्टर 2 के साथ मैंने जो कंप्यूटेशन करी वो इतनी बढ़िया करी है कि अलग अलग फैक्टर अलग अलग बात ही बताएंगे, एंड दैट इज व्हाट आई वांट। अगर फैक्टर एक दूसरे का रिलेशन बताएंगे तो फिर फैक्टर्स क्या हुए, फिर तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, राइट। मैम, हमारे रिसर्च में ऐसा नहीं होगा ना? ऐसा होना चाहिए, मतलब कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर होगा, क्या? क्योंकि हमारी स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटेशन ऐसी ही बनी है इस सॉफ्टवेयर की, वो अपने आप ओके करके मैम। देगा। तो ये मेहनत, वो जो हमने आइट्रेशन लिखा था ना, आइट्रेशन 25, यस मैम। वो ये बैक हैंड पे कंप्यूटेशन करता है, ये मेहनत मुझे एसपीएसएस करके देता है, मुझे नहीं करना, ओके राइट। मैम। अब लास्ट बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स के बारे में नहीं बताया। ध्यान से देखो, जो वैल्यूज आ रही हैं, मुझे इसमें अब कट ऑफ पॉइंट डिसाइड करना है। जैसे मैंने लिखा था कट ऑफ पॉइंट 0.4 से ज्यादा वैल्यूज हो, वो मुझे उस फैक्टर में दिखाना, वरना मत दिखाना। अब इसके अंदर क्या है, मैंने कट ऑफ पॉइंट नहीं दिया, आपको बोल दिया था अनचेक कर दो, यही कहा था ना। यस मैम।
तो उस अनचेक करने का मतलब है सारी कंप्यूटेशन दिखा दो मुझे कि रिस्क अवेयरनेस का फैक्टर 1 में कितना वैल्यू है, 2 में कितना वैल्यू है, स्कोर ऑफ रिटर्न का 1 में कितना वैल्यू है, 2 में कितना वैल्यू है। एक लाइन लिख लो अपने लिए, यूजुअली रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स will take that value which is greater than 0.5. I am repeating, usually rotated component matrix will take that value which is greater than 0.5, but cutoff point again 0.5 is a cutoff point, but cutoff point is again dependent on your results. I am repeating, but cutoff point is again dependent on your results. तो इसके हिसाब से 0.5 से ज्यादा जो वैल्यू हो वो स्टेटमेंट उस फैक्टर में आनी चाहिए, यानी स्कोर ऑन रिस्क अवेयरनेस 1 में आना चाहिए, 2 में आना चाहिए। कौन से फैक्टर में लूं स्कोर ऑफ रिस्क अवेयरनेस को? मैम 1 में। 1 में 0.5 से ज्यादा किस में है मेरे बेटे? इग्नोरिंग साइन 2 से 2 से, राइट? ये देख 0.7 है ना, 0.5 से ज्यादा। मैम वो नेगेटिव में था ना, इसलिए नेगेटिव नहीं, इग्नोर दी साइन। ओके मैम। ओके, लिख ले अपने लिए, इग्नोर दी साइन व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। रिटर्न वाला कौन से में आना चाहिए? रिटर्न वाला कौन से में आना चाहिए? फर्स्ट। क्यों? 0.5 से ज्यादा फर्स्ट में है। इंश्योरेंस वाला कौन से में आना चाहिए? सेकंड। टैक्स रिबेट वाला कौन से में आना चाहिए? किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं। यानी अब फंस गए हम। हमने जब क्राइटेरिया लिया 0.5 से ज्यादा वाला, मेरा तो एक वेरिएबल उड़ गया, उड़ गया ना? यस मैम। तो यानी कट ऑफ पॉइंट मैंने गलत लिया। यानी मुझे इसके एनालाइज के लिए कट ऑफ पॉइंट कितना लेना चाहिए था बेटा? टैक्स रिबेट वाला मुझे हिंट दे रहा है 0.30। वेरी गुड, 0.3। तो अब हम एनालाइज करेंगे। कहाँ गया? डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर। मैंने ऑप्शंस पे क्लिक किया, आप लोग भी करो, और सब तो ऑलरेडी हमारे हैं। सप्रेस करो, कितना सप्रेस करूं? तो स्निग्धा ने मुझे 0.3। बताया 0.3। क्लिक कंटिन्यू, क्लिक ओके। पूरी कंप्यूटेशन दोबारा होएगी। वी हैव नॉट टू वरीड अबाउट एनी कंप्यूटेशन बिकॉज ऑल द रिजल्ट्स आर सेम। बट ध्यान से देखो, कंपोनेंट मैट्रिक्स कुछ खाली लग रही है क्या? यस मैम, उसने रिजेक्ट रोटेटेड कर दिए। कंपोनेंट भी कुछ खाली लग रही है क्या? यस मैम। यानी 0.3 से नीचे की जो वैल्यूज थी वो उड़ा दी। किसने उड़ा दी? SPSS। मेरे सॉफ्टवेयर ने। तो मुझे कट ऑफ पॉइंट डिसाइड करते हुए बहुत 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 ध्यान देना है कि कौन से वाली स्टेटमेंट कौन से फैक्टर में मैं डालूं। अब मेरे पास देखो सारी स्टेटमेंट क्लियर कट आ गई सिवाय 2 स्टेटमेंट के। कौन सी 2 स्टेटमेंट है जो दोनों में लोडेड है इस वक्त? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मैच्योरिटी टाइम। यानी मेरा कट ऑफ पॉइंट सही डिसीजन नहीं बता पा रहा अभी भी। कैसे पता लगा मुझे कि सही डिसीजन ये नहीं बता पा रहा मुझे? बिकॉज ये 0.3 से ज्यादा, इसीलिए। नहीं, क्योंकि अब मैं जज नहीं कर पा रही कि मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 1 में डालूं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 2 में डालूं। मैंने जब 0.3 लिया था तो मेरे को ये प्रॉब्लम आई कि मैं 2 स्टेटमेंट मैच्योरिटी टाइम और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जज ही नहीं कर पा रही कि किस में डालूं, 1 में डालूं या 2 में डालूं। तो यानी मुझे कट ऑफ पॉइंट ठीक लेना पड़ेगा। बताओ जरा अब मैं कैसा कट ऑफ पॉइंट लूं? अपने रिजल्ट देख के बताओ। Which one will tell me the exact situation? 0.5। So let me check at 0.5.
अब हमें यहाँ पे से सीधा जंप करके वी हैव टू मूव टू आवर रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स. इज इट नीट एंड क्लीन? कैन यू क्लियरली आइडेंटिफाई कि फैक्टर 1 में कौन सी स्टेटमेंट जानी चाहिए और फैक्टर 2 में कौन सी स्टेटमेंट जानी चाहिए? मैम टैक्स रिबेट में है ही नहीं कोई वैल्यू. तो इसका मतलब ये हुआ टैक्स रिबेट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल while deciding the investment pattern. पॉइंट समझ में आया? This is called Yes, data ma'am. reduction. I have reduced the variable, I have reduced the data. टैक्स रिबेट वाला जो मैंने लोगों से क्वेश्चन पूछा, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली वो तो आया ही नहीं. टैक्स रिबेट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. वी विल नॉट कंसिडर दिस टैक्स रिबेट पॉइंट व्हाइल टेकिंग द इन्वेस्टमेंट पैटर्न डिसीजन. दैट मैम इज इसको तो फिर हम इंटरप्रिटेशन में इंक्लूड करेंगे इसको कि हाँ ये. बिल्कुल. ये एक आपका इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है भाई. आपने 50 स्टेटमेंट ली, 50 में से 5 फैक्टर बने. आपको क्या लगता है आपने जो 50 स्टेटमेंट पूछी लोगों से वो सारी रेलेवेंट है? No. That is why the first statement of factor analysis that we will do the data reduction and we will summarize it properly. So according to our computation, factor 1 will comprises of 4 variables: easy accessibility, financial institution credibility, maturity time and return, while factor 2 will cover insurance and risk awareness. तो अगर मुझे इस फैक्टर को नाम देना हो तो मैं इसको क्या बोलूंगी? कितना इंश्योरेंस है, कितना मैं रिस्क एवर्स करती हूँ. और यहाँ पर क्या है? फीचर्स है फैक्टर एनालिसिस के कि कितना मेच्योरिटी टाइम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, रिटर्न कितना देती है कंपनी यूजुअली, इजी एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है. तो आई हैव टू नेम माय फैक्टर आफ्टर डूइंग दिस कंप्यूटेशन. और जो नेम है वो रिसर्चर खुद सोचता है. नेम ऐसा हो जो लिटरेचर से मैच करता हो. जैसे मैं अगर चाहूंगी तो मैं फर्स्ट फैक्टर को नाम दूंगी फीचर्स व्हाइल इन्वेस्टिंग डिसीजंस. तो मैं मेनली ये 4 फीचर्स लेती हूँ. एंड द रिस्क कवर्ड और द रिस्क फैक्टर्स दैट वी विल टेक व्हाइल इन्वेस्टमेंट पैटर्न. मैम इसको सेफ्टी मेजर्स भी बोल सकते हैं ना? यस, वेरी गुड. सेफ्टी मेजर्स मेरे ख्याल लगता है बेस्ट आंसर है. सेफ्टी मेजर्स व्हाइल इन्वेस्टिंग डिसीजन. आया समझ में? यस मैम. क्या फैक्टर एनालिसिस क्लियर हुआ? यस मैम. एक बार बता दो कि कौन कौन सी टेबल शो करनी पड़ेगी. तो केएमओ टेबल आप क्यों शो करेंगे अब आप बताएंगे मुझे. सैम्पलिंग एडिक्वेसी के लिए और सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए. यस मैम. कॉम्युनैलिटी आपको क्या बताती है? कितना एक एक वेरिएबल एक्सट्रैक्ट होता है, कितना एक्सप्लेन करता है मेरे पूरे के पूरे डेटा में. आइगन वैल्यू क्या बताती है? कितने नंबर ऑफ हमारे कितने फैक्टर्स फैक्टर्स बनेंगे बनेंगे. और यस मैम. कितना वो टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन करती है हमारे फाइनल डिसीजन को लेने में. यानी ये जो तो फैक्टर है वो 51.5% टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन करते हैं व्हाइल टेकिंग द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट. थर्ड वेरिएबल आपको कंपोनेंट मैट्रिक्स क्या बताती है? कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड ईच फैक्टर. रोटेटेड कंपोनेंट क्या बताती है? I think I had moved to the last one. यस. तो फैक्टर हो गया, कॉम्युनैलिटी, टोटल वेरिएंस, कंपोनेंट मैट्रिक्स. अच्छा, कंपोनेंट मैट्रिक्स ना ये सप्रेस हो जाएगी क्योंकि वो सब पे अप्लाई करेगा. बट कंपोनेंट मैट्रिक्स के अंदर भी आप चाहो तो ये बता दो खाली, आप चाहो तो सारा बता दो, बट मेन यही बताने का है, दिस पार्ट. ओके मैम.
रोटेटेड कंपोनेंट मुझे बताती है, फाइनल डिसीजन लेती है कि जितने भी फैक्टर्स बने हैं हर एक फैक्टर के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स किस किस फैक्टर में आएंगी। उसका कट ऑफ रेट जो है वो मुझे एज अ रिसर्चर खुद डिसाइड करना है। इट कैन बी 0.1, इट कैन बी 0.3, इट कैन बी 0.4, इट कैन बी 0.5, इवन इट कैन बी मोर देन 0.5, सो डिपेंडिंग ऑन माई डेटा रिजल्ट्स। कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम रिसर्च पेपर में नहीं दिखाते। कंपोनेंट स्कोर कोफिशिएंट मैट्रिक्स की भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं फैक्टर एनालिसिस से रिग्रेशन रन कर रही हूं तो जरूरत होती है, नहीं तो नहीं होती है। जो लोग अपना रिसर्च पेपर फैक्टर एनालिसिस पे खत्म कर देंगे उनको कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन, कंपोनेंट स्कोर मैट्रिक्स और कंपोनेंट स्कोर वेरिएंस मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स शो नहीं करनी है। इज इट क्लियर? यस मैम। कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तो हम रिग्रेशन जब रन करते हैं तब भी शो नहीं करते हैं। क्या सारी टेबल्स क्लियर हैं? यस मैम। yes please, is it clear to everyone because I am teaching Yes, to ma'am. everyone? Yes, okay, ma'am. तो अभी मैंने Yes, आपको एक फैक्टर एनालिसिस 2 क्या दिया है, दिख रहा है? फैक्टर एनालिसिस 2 हम Yes, इसको ma'am. क्विकली कंप्यूट करेंगे क्योंकि हमको अब क्लिक क्लिक करना आ गया। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द थ्योरी पार्ट, बट मैं पहले डेटा समझा देती हूँ क्योंकि ये डेटा आपके काम का है। तो मैंने लोगों से पूछा आप लोगों को क्या प्रेफर्ड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रेफर्ड है या जूसेस प्रेफर्ड है, और अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं तो कैसे कैसे स्टेटमेंट्स पूछी मैंने कि एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक रिफ्रेशिंग है, क्या एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक बैड फॉर हेल्थ है, क्या कन्वीनियंट टू सर्व है, क्या हमें एज का अवॉइड करते हैं एज पैरामीटर को लेके, इज इट वेरी टेस्टी, इज इट नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन, should we consume it occasionally, should not be taken in large quantities, is aerated drinks are as good as energy drinks or not good as energy drinks, is aerated drinks are better than fruit juices, अब रिकमेंडेड एरिएटेड ड्रिंक्स टू अदर्स, यहां पर मैंने लिखा कि आप क्या रिकमेंड करेंगे। यानी जब ये सारा डिसीजन हो जाएगा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं इस एनालिसिस के बाद, ये जो ऊपर के 10 पॉइंट्स हैं, इस एनालिसिस के बाद चेक करूंगी कि क्या मेरे जो रिजल्ट हैं वो फाइनल डिसीजन देते हैं whether we should recommend the aerated drinks or not. That is the purpose of my study. So purpose of my study is whether I will recommend aerated drinks to others or not. तो उसके बेसिस पे मैंने ये 10 स्टेटमेंट पूछी। अब मैं आ गई डेटा वेरिएबल पे। जरा साथ साथ मुझे बताना, मुझे एनालाइज के बाद कहाँ जाना है? डायमेंशन रिडक्शन। और उसके बाद फैक्टर में। फैक्टर। फैक्टर में मैं गई तो कितनी स्टेटमेंट लूं? 1 to 10 और x1 to x10 प्लस बहुत s। सारे। ध्यान से सोचो, ये तो मेरा डिपेंडेंट है ना, दिस इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन ऑल 10 आइटम्स, कि इन लोगों की बातों के बेसिस पे मैंने फाइनल डिसीजन लिया वेदर आई विल रिकमेंड दिस ड्रिंक और नॉट। तो दिस इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दीज 10 आर इंडिपेंडेंट। यानी जब मैं फैक्टर एनालिसिस के बाद रिग्रेशन में मूव करूंगी जिसमें मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए था, तो मैंने वो पूछा है। तो मैं x1 to x10 ये वेरिएबल्स इसके अंदर डाल दी, कितने रिस्पोंडेंट थे वो छोड़ दिया और डिपेंडेंट वेरिएबल छोड़ दिया, क्योंकि फैक्टर एनालिसिस में डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लेते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, राइट? डिस्क्रिप्टिव में मुझे किसे क्लिक करना है? KMNO। KMO। एक्सट्रैक्शन में किसे क्लिक करना है? एक्सट्रैक्शन में कोरिलेशन मैट्रिक्स और मेरी ठीक है। तो यानी जो डिस्प्ले हो रहा है वो परफेक्ट है। रोटेशन में वेरीमैक्स। वेरीमैक्स, और वेरीमैक्स क्लिक करते ही आगे का रोटेशन अपने आप क्लिक हो गया। स्कोर्स मुझे क्लिक करना है इस क्वेश्चन में या नहीं? स्कोर्स तभी यूज होते हैं जब फैक्टर एनालिसिस को मैं आगे यूज करूंगी रिग्रेशन पर्पस के लिए।
If there is a डिपेंडेंट है तो नहीं, dependent variable, then you have to डिपेंडेंट है। compute the scores. तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे scores compute करने चाहिए। Save as variable, regression, display, factor, score, coefficient, matrix. ऑप्शन में मुझे अभी क्लिक करना है या पहले मैं डेटा देख लूं तब क्लिक करूं? मैम देख लेते हैं। तो पहले डेटा देख लेते हैं फिर क्लिक करेंगे। कौन से वाला डेटा देखोगे इसमें? कौन से वाला टेबल देखोगे? कोफिशिएंट डिस्प्ले फॉर्मेट। नहीं, रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स। So I am not clicking anything and this is my output. जरा मुझे बताना KMO ठीक है, सैम्पलिंग एडिक्वेसी इज ओके, यस मैम। इज सिग्निफिकेंट रिजल्ट? यस मैम। यस मैम। तो मेरा जो बेसिक टेस्ट है मैंने क्लियर कर लिया। Communalities will tell me how much is the each variable is explaining the factor. So they are explaining good enough. देखो सारे के सारे कितनी ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैम बट एडिक्वेट से थर्ड लास्ट मैम 0.364 है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Communalities will explain you the extractions that is taken up from this, whether the value is more than 0.5 or not, right? तो यानी जो ये वाला वेरिएबल है, हो सकता है ये घोटाले में हो, आपको ये वैल्यू इतना इंडिकेट कर रही है कि यानी मुझे देखना है भाई ये वाली वैल्यू फिर फाइनली आई एम गोइंग टू कंसिडर इन द फैक्टर और नॉट। तो इट इज द वार्निंग सिग्नल। कितने फैक्टर्स बन रहे हैं मेरे फाइनली? 3। कैसे पता? हम आइगन वैल्यूज 1 से ग्रेटर 3 है। And how much is the total variance explained by the by all my variables in the whole decision of aerated drinks? मैम 28%, 44%। No. Only one value you supposed to say, which is the 57.975, the last value. ये तीनों values का total है। देखो ऊपर क्या heading है? Cumulative. जब क्यूमुलेटिव है तो तीनों का टोटल है। परसेंटेज ऑफ वेरिएंस 57.975 में एक एक वैल्यू कितना एक्सप्लेन कर रही है तो वो बीच में लिखा है। तो टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय ऑल दिस फैक्टर्स आर फेयर इनफ। मेरे 10 फैक्टर 58% के करीब एक्सप्लेन कर रहे हैं डेटा को। सो दैट इज अ वेरी गुड नंबर। आगे बढ़ू? यस मैम। मैम मिनिमम 51.5 होना चाहिए ना? नहीं, इसका कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है। इट कैन बी 30 ऑल्सो, it can be 20 also, but if your considered factors are explaining only 20 or 30%, तो यानी आपने कितनी बढ़िया रिसर्च करी है। बढ़िया करी है ना? इतनी मेहनत यस करी, इतना मैम। डेटा इकट्ठा किया और खाली 20% डेटा एक्सप्लेन करता है। बढ़िया करी घटिया करी? बढ़िया। घटिया। जब पेपर छपवाने जाओगे तो वो पूछेगा आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा ढंग से, आपको लिटरेचर से मेजर फैक्टर्स नहीं पता लगे। अगर आपको मेजर फैक्टर्स पता लग गए होते तो ये वेरिएंस एक्सप्लेन 20-30% नहीं आता। जब तक कोई न्यू स्टडी ना हो, कोई न्यू स्टडी हो जो पहले स्टडी ना हुई हो, उसमें 20-30% आता है तो बहुत बढ़िया। पुरानी स्टडीज के बेसिस पे करोगे तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी मोर देन 50% एटलीस्ट। पॉइंट क्लियर? डाउट है तो पूछो। तो फिर अगर हमारे में ऐसा आता है तो क्या किया जाए? अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो आपको रिसर्चर जो अगर फॉरेन में पेपर छपवाने दोगे वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, भाई जब इसके अंदर तुम्हारा प्रॉपर ही नहीं एक्सप्लेन हुआ, तुमने लिटरेचर ढंग से नहीं पढ़ा, ये फैक्टर्स तुमने कंसिडर नहीं करे, तो रिसर्च किस बात की करी? इसलिए फाइनल क्वेश्चनर बनाने से पहले मुझे लिटरेचर रिव्यू ढंग से पढ़ना चाहिए। अगर ध्यान होगा जब भी मैंने अपने बच्चों को गाइड किया है मैंने उनसे पूछा है आपने कौन सा रेफरेंस पेपर लिया, व्हाट इज योर बेस पेपर, क्योंकि जो बेस पेपर है उसने जो स्टेटमेंट्स फाइनली बनाई वो लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे बनाई, उसके बेसिस पे डिसीजन हुआ।
Is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कंपोनेंट मैट्रिक्स, क्योंकि मुझे पता लग गया था 3 कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली कंपोनेंट मैट्रिक्स सारे के सारे फैक्टर लोडिंग बता रही है, सारे के सारे कोरिलेशन के नंबर बना रही है। जैसे एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक किसके सबसे ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है, विद विच फैक्टर? Factor 2. With the factor 2.535 and so on. अब रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स के बेसिस पे मुझे जरा जज करके बताओ व्हाट विल बी द कट ऑफ पॉइंट। इनिशियली क्या रखें कट ऑफ पॉइंट, क्योंकि कट ऑफ पॉइंट हम बार बार चेंज कर सकते हैं और हमें तो एक ही मिनट में रिजल्ट मिल जाता है। बताओ क्या रखूं सबसे पहले कट ऑफ पॉइंट। लुक एट द ग्लिम्सेस। मैम आई गेस पहले 0.4 रखना चाहिए, बट आई गेस एंड हमारा 6.6 से हो शायद। तो अगर मन में पहले 0.4 आ गया है, सो वी विल कीप इट 0.4 फर्स्ट। बस जैसे ही मन में जो आ जाए वही डाल देना है। हमने कौन सा मैनुअल कंप्यूटेशन करनी है, हमें पता है कौन दिखाएगा हमें। देखो बेटा, आपने 0.4 का, मैंने 0.4 डाला, क्या मुझे पिक्चर क्लैरिटी मिल गई है? मैम लास्ट वाला फैक्टर में डबल आंसर है। और लास्ट वाले फैक्टर की कोई वार्निंग मिली थी मुझे कॉम्युनैलिटी में? यस मैम, एप्सा ने बोला था ना। देखते हैं कॉम्युनैलिटी में इसी फैक्टर की गड़बड़ आ रही थी 0.364। जब इप्सा ने क्वेश्चन उठाया, मैम सबके तो बढ़िया आ रहे हैं 0.5 से, 0.364 नहीं आ रहा। इसलिए फैक्टर एनालिसिस कहता है कॉम्युनैलिटी में अगर वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो उन स्टेटमेंट्स को रखना, वरना उनको फाइनल डिसीजन से निकाल देना। नहीं निकालोगे कोई बात नहीं, मैं रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स पे दोबारा बताऊंगा कि देखो रखोगे या नहीं। तो क्या लगता है ये वाली स्टेटमेंट रखोगे या नहीं? नो मैम। हटा सो देते हैं। हटा देते हैं, हमारे को एकदम क्लियर पिक्चर मिल रही है। लेट अस से आई हैव रिमूव्ड दिस आइटम, और मैं कैसे रिमूव करूंगी? आई एम गोइंग टू इंक्रीज माय कट ऑफ पॉइंट। 0.5 is my cutoff point, and after 0.5 this is my component matrix. Is my picture clear now? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। कितना ब्यूटीफुल कंपोनेंट मैट्रिक्स बन के आया। पहले फैक्टर में कितनी आइटम्स आ रही हैं? पॉइंट मतलब 81.5%। अरे कितनी, मैं कह रही हूँ स्टेटमेंट्स आ 4 रही हैं। 4 4, स्टेटमेंट। फैक्टर 2 में कितनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं? 3 और 3, थर्ड में 2, कितनी स्टेटमेंट्स तुमने चेक करवाई थी लोगों से रिगार्डिंग एरिएटेड डिंग्स? 10। 10 10 कराई थी। 10 x 10 तक लिखा था। और यस मैम। फाइनल डिसीजन में 3 फैक्टर बनाए, कितनी स्टेटमेंट पर? 9। बस ये तेरा एनालिसिस पार्ट है। और एनालिसिस पार्ट के अंदर जरा मुझे फैक्टर 1 की हेडिंग सोच के बताना क्या बनेगा। फैक्टर 1 में 4 बातें आ रही है। इट इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन, शुड बी अवॉइडेड विद एज, बैड फॉर हेल्थ, एंड शुड बी कंज्यूम्ड ओकेजनली। कैन आई गिव दिस फैक्टर एज द हेल्थ कंसिडरेशन? यस मैम। तो मेरा फैक्टर 1 बन गया हेल्थ कंसिडरेशन रिलेटेड टू एरिएटेड ड्रिंक्स। सेकंड वाले का जरा पढ़ के बताना। वेरी टेस्टी, रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशमेंट। convenient to serve. So can I say the benefits for the aerated drinks कि बहुत अच्छी होती है, रिफ्रेशिंग होती है, convenient to serve है। यस मैम। लास्ट वाले का बनाओ। Not as good as energy drink and are better than fruit juices. Demerits maybe. और आई कैन से द कंपैरिजन विद द अदर ड्रिंक्स। एक एनर्जी ड्रिंक से कंपैरिजन है, दूसरा जूसेस से है। Yes जूसेस वाले मैम। का रिजल्ट देखो, आर Yes. बेटर देन फ्रूट जूसेस। नेगेटिव साइन लगा गया अपने आप रिजल्ट में। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? आर नॉट बेटर देन फ्रूट जूसेस।
अब यहाँ मैम पे साइन पढ़ना सीखो। कंपैरिजन टू अदर बेवरेजेस। हाँ, तो यानी फ्रूट जूसेस आर बेटर देन एरिएटेड ड्रिंक्स। अगर ये स्टेटमेंट लिखी होती मैंने तो रिजल्ट आता 0.640। क्योंकि मैंने रिवर्स स्टेटमेंट लिखी है तो अपने आप उसने भी रिजल्ट रिवर्स दे दिया। दे आर नॉट बेटर, नेगेटिव साइन। यस मैम। क्या समझ आया मेरे बच्चों को फैक्टर एनालिसिस? यस 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 इज मैम। इट क्लियर? हाँ, यस मैम। यस पक्का? Write your name on the chat script and enrollment number and leave the classroom. If anyone has any doubt, you can ask me later on also. Everyone, please write your name and roll number on the chat script with section. Ipsa done, Amit done, Snigdha and Jyoti, hurry up. Snigdha done. आज की क्लास का आप लोगों का देर इज नो फीडबैक, नो एमसीक्यू। वी विल टेक योर फाइनल एमसीक्यू ऑन ट्यूसडे इन 11 to 12 class. Please get ready for the final MCQ. It will consider 30 questions related to all the topics that we have covered, including factor analysis. तो इसलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके लिए कोई फीडबैक, कोई MCQ नहीं रखा है, so that थोड़ा थोड़ा you can prepare for your final MCQ test. क्लियर है? इजी है, डोंट वरी। मैम ट्यूसडे को किस टाइम पे होगा? 11 to 12 मॉर्निंग स्लॉट रखा है क्योंकि दैट इज कन्वीनियंट फॉर यू। ओके मैम। मेरी क्लास होती है ना 11 to 12, दैट क्लास आई हैव गिवन फॉर द एमसीक्यू, राइट? यस मैम। मैम एमसीक्यू में पूरी क्लास फिट प्रिपेयर होती है। एमसीक्यू में वो लोग सब अटेम्प्ट करेंगे जिन लोगों ने इस कोर्स के लिए रजिस्टर करवाया था। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग बिकॉज वी वांट, आई वांट टू से